Students, today we are going to discuss institutional reforms of the Indian agriculture which took place. Now, as we know that there are two types of reforms, technical reforms and institutional reforms. In technical reforms, we have discussed the techniques and technologies which were induced in the Indian agriculture. Now, today we are going to see the reforms which are related to institutions, which are related to legislations, laws which came into existence for the reforms of the old land system, old tenure system that we are going to discuss today. Actually, the two basic objectives of land reforms are to end exploitation of the actual tillers of the soil. Now, who are the actual tillers of the soil? Actual tillers of the soil are the farmers who work on the soil, on the land, who cultivate the crops, who work hard for the crop production, for betterment of the cultivation, and who is the owner of the land, jamindars. In jamindar system, all of us are knowing that jamindar was the real owner of the land and who were not working actually on the land, but they were only taking the profits, income from the farmers, and they were exploiting. They fixed the terms of the interest, and as per that terms of the interest they were taking. They were not interested in the betterment of the cultivation. They were not interested in the condition of the cultivation. So if there were bad crops or good crops, the amount that were fixed had to be paid to them. So that was the most difficult things for the tillers of the soils, poor farmers. Many times they were trapping in the financial crisis and many other social related problems. So the two basic objectives of land reforms are to end exploitation of the actual tillers of the soil, and second one is to promote equality in the rural economy. रूरल इकोनॉमी में जो है इक्वलिटी को भी प्रमोट करने के लिए, क्योंकि रूरल इकोनॉमी में ऑल द फार्मर्स आर नॉट equal. There are many big landlords and there are many marginal farmers who own only few lands, few units of land, even less than 1 acre of land. So government took many steps for land reforms which are as follows. तो हम लोग को ये दो ऑब्जेक्टिव को याद रखना है. फर्स्ट वन इज टू एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द एक्चुअल टिलर्स ऑफ द सॉइल एंड सेकंड टू प्रमोट इक्वलिटी इन द रूरल इकोनॉमी. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. Now, so what are the steps which are taken by the government? First one is abolition of intermediaries. Intermediaries का मतलब होता है कि जो बीच में जो काम करता है, जैसे जमींदार जो है वो क्या करता था, वो मिडिल मैन का काम करता था. वो जो लेता था फार्मर से रेंट और ले करके वो जो है स्टेट को दे देता था. तो उसको एबोलिश कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया गया. सो इंटरमीडिएट्स पॉपुलर नॉन जमींदार्स हैव बीन एबोलिश्ड. उसको ख़त्म कर दिया उस सिस्टम को. यानी कि जो लैंड और जो टीलर्स है वो डायरेक्ट आ गया आपको स्टेट के कंट्रोल में. यानी कि मिडिल मैन की ज़रूरत नहीं पड़ा. यानी कि जो रेंट पेड करेगा, जो भी इनकम जो है, जो रेंट फिक्स किया गया वो जो पेड करेगा वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को पेड करेगा, ना कि कोई ज़मींदार को. So this system have been abolished. Ownership rights have been conferred upon those who actually cultivate the soil. और ऑनरशिप को भी चेंज किया गया. जो एक्चुअल में जो खेत पे काम कर रहा है वो जो है असली मालिक ऑनर है लैंड का, ना कि वो जो ज़मींदार है जो उससे रेंट वसूलता है. तो ऑनरशिप राइट्स हैव बीन कन्फर्ड अपॉन दोज हु एक्चुअली कल्टिवेट द सोइल. सो दिस टू थिंग्स वेयर डन इन द एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज. Second is regulation of rent. Rent has been regulated by the government to end extortions from the cultivators. और रेंट को जो है गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया गया. जो पहले एक्सप्लॉइट होता था, जो पहले एक्सटॉर्शन किया जाता था फार्मर से, उसको जो है कम किया गया. जनरली रेंट शुड नॉट बी एक्सीडेड
1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्रॉप, जो वैल्यू ऑफ क्रॉप उसका 1/3 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को फिक्स कर दिया गवर्नमेंट। थर्ड वन इज कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। आपको मालूम है जो स्मॉल फार्मर्स है उसके पास में जो लैंड्स है वो स्केटर्ड है, मतलब एक जगह पे नहीं है। द लैंड्स विच आर स्केटर्ड विच आर नॉट कंसोलिडेटेड एट वन प्लेस, जो अलग अलग जगह पे है, उससे क्या प्रॉब्लम होता था, उससे उसको मैनेज करने में प्रॉब्लम होता था। एंड इट वाज कॉस्टली मैनेजमेंट वेयर देयर। व्हाई कॉस्टली मैनेजमेंट वेयर देयर? बिकॉज लैंड्स वेयर स्केटर्ड बाय डिस्टेंसेस, बाय माइल्स, एंड वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होता था वो ज़्यादा लगता था, और मैनेज करने में भी प्रॉब्लम होती है। जो अलग अलग लैंड रहेगा, अलग अलग जगह पर रहेगा, उसको मैनेज करने में समस्या होती थी। सो देयरफॉर कंसोलिडेशन इज ए प्रैक्टिस टू अलॉट लैंड टू द फार्मर एट वन प्लेस एज अ रिप्लेसमेंट फॉर हिज scattered holdings. It saves the cost of the cultivation, obviously. By 2004, more than 1633 lakh hectares of land was brought under consolidated holdings, और 2004 तक जो है 1633 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो है वो उसको कंसोलिडेटेड होल्डिंग्स जो है उसको किया गया गवर्नमेंट की हेल्प से, गवर्नमेंट के मदद से। जो इधर उधर लैंड था उसको गवर्नमेंट एक जगह प्रोवाइड किया और बाकी जो है उसको गवर्नमेंट लिया। तो ये जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव जो है ये साबित हुआ। फोर्थ वन इज सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। नो, सीलिंग का मतलब क्या होता है? सीलिंग का मतलब हम लोग जानते हैं कि ये मैक्सिमम होता है, ज़्यादा। तो फॉर द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड सीलिंग हैज़ बीन इम्पोज्ड ऑन द होल्डिंग साइज, और होल्डिंग साइज पे जो है सीलिंग लगा दिया। मतलब कोई भी जो है जमीन आदमी जो है, कोई जो इंडिविजुअल है या फैमिली है, वो एक मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा ज़मीन को, लैंड को ऑन नहीं कर सकता है। मतलब एक मैक्सिमम लिमिट को फिक्स किया गया और मैक्सिमम लिमिट को कोई भी पार नहीं कर सकता है। उससे ज़्यादा जो है किसी के पास ज़मीन नहीं रहना चाहिए। तो उसको हम लोग बोलते सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। तो सेवरल स्टेट्स ऑफ इंडिया में, बहुत अलग अलग स्टेट्स में जो है अलग अलग लैंड मैक्सिमम लैंड साइज जो है उसको फिक्स कर दिया गया। नाउ सीलिंग ऑन होल्डिंग्स मीन्स द मैक्सिमम साइज ऑफ कल्टिवेबल लैंड holding that an individual or family can own. Okay. The surplus land has been resumed by the government and redistributed among smallholders or landless farmers or laborers. तो जो सरप्लस लैंड बच जाता था, यानी कि सीलिंग लगाने के बाद जो सरप्लस लैंड बच गया उसका क्या होता है, उसको जो है गवर्नमेंट बांट दिया गया। किसमें गवर्नमेंट उसको बांट दिए? स्मॉल होल्डर्स में, जो छोटा जो होल्डर जिसके पास कम ज़मीन है या जिसके पास ज़मीन है ही नहीं, गरीब है, बीपीएल कैटेगरी का है, उसको जो है गवर्नमेंट ज़मीन जो है प्रोवाइड किया। कौन सा ज़मीन? जो सरप्लस हो गया था, जिस आदमी के पास में, जिस इंडिविजुअल के पास में जितना ज़मीन जो है फिक्स किया गया था सरकार के द्वारा, सीलिंग जो है मैक्सिमम सीलिंग जो फिक्स किया गया था, उससे ज़्यादा जो ज़मीन था उसको गवर्नमेंट अपने अंदर में लेकर के उसको बांट दिया। नो, नेक्स्ट वन इज कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब होता है ऐसा फार्मिंग जिसको मिलजुल करके जो है करना, बहुत सारे फार्मर्स का ग्रुप बना करके और फिर मिलजुल करके जो है वर्क करना, उसको हम लोग कोऑपरेटिव फार्मिंग बोलते हैं। सो कोऑपरेटिव फार्मिंग इज इनकरेज टू इन्हेंस द बार्गेनिंग पावर ऑफ द स्मॉल होल्डर्स। और यदि छोटा छोटा जो ज़मीन वाले जो फार्मर्स था, जिसके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग्स था, तो उसके पास में ज़्यादा इनकम नहीं रहता, उसके पास ज़्यादा जो है आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं रहता था। तो जब एक साथ बहुत सारे फार्मर्स मिल गया तो उसके पास काफ़ी लैंड भी हो जाता था एक जगह, और उसके पास में पैसा भी रहता था। तो उससे क्या था, उसका बार्गेनिंग पावर जो है उसका बढ़ जाता था। इट हेल्प्स द स्मॉल फार्मर्स टू बाय एग्रीकल्चरल इनपुट्स एट लो प्राइस। और जब ज़्यादा इनपुट्स लेता था सब मिल करके, तो उससे क्या होता था, वो बार्गेन करके जो है कोई भी एग्रीकल्चर इनपुट्स को लो प्राइस में, कम कीमत में जो है उसको खरीद पाता था। एंड सेल देयर प्रोड्यूस एट हायर प्राइस। चूँकि अब जो है एक साथ मिल के काम कर रहा है तो उसके पास जो है पैसा है जिससे कि वो ट्रांसपोर्ट जो है कर सकता है और सही मार्केट में अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकता है। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग से ये भी होता है कि जो फार्मर्स है उसको सही प्राइस मिलता है। क्यों सही प्राइस मिलता है? क्योंकि वो जो है मार्केट तक जो है पहुंच पाता है, उसके पास उतना इनकम हो जाता है ताकि वो जो है मार्केट तक पहुंच सके। ना दिस इज द इमेज फॉर द कोऑपरेटिव फार्मिंग। आप देख सकते हैं कैसे एक दूसरा का जो हाथ पकड़ करके जो है काम करता है।
unity. Now, some of the most renowned cooperatives in India are अमूल आप सुने होंगे, श्री महिला गृह उद्योग जिसको लज्जत पापड़ एक एग्जाम्पल है, उसके बाद KRIBSCO and Indian Farmers Fertilizer Cooperatives, which is also one of the largest cooperatives in the world. तो ये सब these are some examples of the cooperative societies of the India. ना इवोल्यूशन, ना आप एक क्रिटिकल इवोल्यूशन करते हैं कि जो लैंड रिफॉर्म्स जो आपको लाया गया, जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाया गया, उसका क्या जो है मतलब उसको कैसे हम लोग देखते हैं, क्या वो सक्सेसफुली हुआ या फिर फेल हुआ. सो देयर हैज बीन मेनी लूप होल्स इन द लेजिस्लेशन दैट जमींदार्स टेक बेनिफिट्स एंड एक्सप्लॉइट द सिस्टम दे क्लेम एज द एक्चुअल टिलर्स ऑफ द सॉइल. नो जो जमींदार जो है उसको जो इस सिस्टम को जो ख़त्म किया गया, तो जो एक्चुअल टिलर्स था, जो एक्चुअल काम करता था खेत पे, उसको जो है ऑनर माना गया. तो जो ज़मींदार था वो खुद इस चीज़ को क्लेम किया कि वो खुद जो है एक्चुअल टिलर है, वो खुद काम करता है, उसके अंदर में ज़मीन है, तो इस पे जो है वो क्लेम किया, उसका जो बेनिफिट उसको मिला. द बिग लैंडलॉर्ड्स चैलेंज द लैंड सीलिंग इन द कोर्ट एंड डिलेड द इम्प्लीमेंटेशन. जो बड़ा लैंडलॉर्ड्स था जिसके ऊपर में लैंड सीलिंग का जो है खतरा आ गया कि आप जो है इससे ज़्यादा लैंड को आप ऑन नहीं कर सकते हैं, तो वो कोर्ट में केस किया, और कोर्ट में केस करने के बाद जो है मैटर जो है कोर्ट में चला गया, और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत ही लेट हो गया. दे यूज दिस डिले टू रजिस्टर देयर लैंड्स टू क्लोज रिलेटिव्स एंड एस्केप फ्रॉम लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन. और चालाकी में क्या किया, जो कोर्ट में जो डिले हुआ प्रोसेस में इम्प्लीमेंटेशन में, तो तब तक क्या किया, उसके पास जो ज़मीन था, जो एक्स्ट्रा ज़मीन था लैंड सीलिंग के लगाने के बाद, जो एक्स्ट्रा ज़मीन उसके पास था, उसको क्या किया, वो अपना क्लोज रिलेटिव्स में जो है उसको दे दिया, उसको जो है रजिस्टर कर दिया, और उसका फिर जो है उसका या तो मनी ले लिया या फिर उसको जो है ज़मीन उसके पास ही रह गया. लैंड रिफॉर्म्स वेयर सक्सेसफुल इन द स्टेट्स ऑफ केरला एंड वेस्ट बंगाल. नो, केरला एंड जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे ये सक्सेसफुल रहा है, बाकी जो अदर स्टेट्स है वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं रहा. और अभी भी जो है इनइक्वालिटी इन लैंड होल्डिंग्स आर परसिस्टिंग. अभी भी जो है प्रॉब्लम जो है लैंड रिफॉर्म्स का अभी भी है ही, ये जो है 100% इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और लैंड रिफॉर्म्स in the Indian agriculture. Thank you.